Good morning everyone. We are going to start with very important and interesting topic, that is steps for writing Lewis structure. On the basis of this topic, the next topic is to be covered, and according to the examination point of view, it is also very important. But for this, giving a quick recap to what we have done in part 1 of this chapter, that in that part it was said that Lewis gave the symbols for writing the number of valence electrons. Lewis ने कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. देन why to write the configuration of the inner electrons also? For that he said that to write the valence electrons only in the form of dot or cross. Also he said that in order to attain octet in their valence shell, atoms combine with each other either by transference of electrons or by sharing of electrons. Now on the basis of this, if we have to write the Lewis structures for the molecules, अब इसे समझने के लिए हम इनके स्टेप्स को एग्जाम्पल के साथ साथ डिस्कस करेंगे. So for that, first of all, if I take the example of carbon monoxide, for this the first step is कि अगर हमें इसका Lewis स्ट्रक्चर लिखना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. अब इनके बीच में बॉन्ड बनना है तो हम इनके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे. 2 एटम्स आर देयर. कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर 4 and in oxygen the number of valence electrons they are 6. So in all 10 electrons they are there. Now the next step is to write its skeletal structure. Skeletal structure means कि इन atoms की placing कहाँ करनी है. अब क्योंकि 2 ही atoms हैं, so accordingly they will placed adjacent to each other. और कोई इसका कोई placing का other way नहीं होगा. Then next is to attach the given atoms at least by one bond. क्योंकि इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ही जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे. इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड अप. अब क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए तो अब हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. Now we have to adjust these electrons around these 2 atoms in such a way that both the atoms will acquire octet in their valence shell. अब अगर हम पहले इसको सिर्फ हमें ये पता है कि हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है, we can do it in this way कि हमने ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर दिए और कार्बन के अराउंड 2 कर दिए, तो इन ऑल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्टेड हो गए. मगर अगर हम ऐसे एडजस्ट करें तो इस ऑक्सीजन के अराउंड तो 6 ये और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. सो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. इन दैट केस व्हाट कैन वी डू इज, यहाँ से एक पेयर और यहाँ से एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का they will form bond between carbon and oxygen like this. Now in this way carbon के around 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसी तरह ऑक्सीजन के अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 and 8 दोनों के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. So this is the way to write the Lewis structure. क्योंकि ल्यूइस ने कहा कि एटम्स अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज करते हैं बॉन्ड बनाने में, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि उनकी वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो सके. सो दिस इज द वे टू राइट द Lewis स्ट्रक्चर फॉर सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. टेकिंग इन अनदर एग्जांपल which is of H2CO3, hydrogen carbonate. It is also a molecule. Again starting with the first step, count the total number of valence electrons. Hydrogen have 1 electron, 2 hydrogen atoms means 1 into 2, plus carbon will have 4 valence electrons, plus oxygen will have 6 valence electrons. But how many oxygen atoms they are there? They are 3.
So total number of electrons will be 2 plus 4 plus 6 3s are 18. In all, total there are 24 electrons. Now we have to arrange these 24 electrons. Next step is to write the skeletal structure. अब क्योंकि यहाँ तो दो ही एटम्स थे, इसलिए हमने उन्हें ऐसे अरेंज कर लिया. अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो इसमें एटम्स की प्लेसिंग कैसे होगी? फॉर दैट द रूल इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एलिमेंट विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें से अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल बी सराउंडेड विद द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन. तो हमने इसके अराउंड ऑक्सीजन अलाइन कर दिया. नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोजन. द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज दैट दे आर ऑलवेज सिचुएटेड टर्मिनल. ये हमेशा एंड्स पर ही लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक एक बॉन्ड ही बना सकते हैं. अगर कहीं इन बिटवीन आ जाएंगे तो बॉन्ड ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल. हेंस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दे आर ऑलवेज placed on the terminal positions only. Also we know that it is carbonic acid. अगर ये कार्बोनिक एसिड है तो इसका मतलब इसमें ये टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है. तो वो H पॉजिटिव की फॉर्म में कब रिलीज होगा? जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा. So for that now we have to place hydrogen. Obviously we will place after ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों कंडीशंस हो गई. एक तो ये टर्मिनल पोजीशन पे आ गए, दूसरा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो गए. नाउ दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हर एलिमेंट को एटलीस्ट एक बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया जाए. बाय डूइंग दिस वी हैव यूज्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स आर देयर, मींस वी हैव यूज्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर दिए तो मींस आउट ऑफ 24 10 आर यूज्ड. सो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 14. फॉर दिस द एडजस्टमेंट ऑफ दीज 14 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए. ऑब्वियसली हम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं. सिमिलरली हेयर 4 electrons they will get adjusted here. 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons now they are adjusted. We are left with 6 electrons. So 1 2 3 4 5 and 6 electrons they will be adjusted around this oxygen. Now by doing this hydrogen we know that hydrogen has to complete its duplet. तो वो यहाँ से अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा. इन द सेम वे दिस हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया विद 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर दिस ऑक्सीजन ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ कमिंग टू दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स. बट इफ वी कम टू कार्बन, इसके अराउंड 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स दे आर देयर. लेकिन ल्यूइस क्या कहता है कि हर एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो दिस कैन बी डन बाय शिफ्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर. इससे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ऑक्सीजन के अराउंड हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ऑक्सीजन के अराउंड हो गए. सो इन दिस वे वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज ल्यूइस स्ट्रक्चर. Now we have discussed 2 molecules which were not having any charge. अब दोनों में हर एटम ने अपने अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए. यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ने, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल की जगह इफ वी गेट
an anion or a cation, then how we will write the Lewis structure? For that, the next example is of CO3 2 negative, that is carbonate ion. Again, following the same steps, first of all we have to write the number of valence electrons. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 3. Now this 2 negative is indicating that this is having 2 extra electrons. 2 negative means कि इसने 2 electrons gain किए हुए हैं. So we add 2 electrons to find the total number of valence electrons. Now for total number of valence electrons, 4 plus 18 plus 2 means total number of electrons will be 24 here. This is an anion. अगर cation होगा तो हम total number of valence electrons में से उतने electrons subtract करेंगे, क्योंकि cation कैसे बनता है? By the loss of electrons. Now after the completion of first step कि हमने total number of electrons लिख लिए, next is to write the skeletal structure. Again carbon is less electronegative, it will be in the center surrounded with more electronegative atoms, that is oxygen. Next step is to attach them with single bond. By using single bonds, 2, 4 and 6 electrons they are used. So now we are left with 24 minus 6, that is 18 electrons. For this 18 electrons we have to arrange these 18 electrons around the atoms in such a way कि सबके बाहर 8 electrons complete हो जाए. Now if we write 6 electrons around each carbon atom, oxygen atom, if we arrange 6 electrons around each oxygen atom, by doing this हर ऑक्सीजन एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. सो इन दैट केस एनी वन ऑफ द ऑक्सीजन्स, कोई भी किसी में से भी एक पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा. एंड बाय डूइंग दिस हर एक एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के भी, यहाँ भी और कार्बन के अराउंड भी. नाउ because this was an ion, so we will indicate it by this that it has gained 2 electrons. So accordingly 18 electrons इसमें हो गए. So in this way we can write the Lewis structure. This I have explained you earlier कि this is an anion. अगर ऐसे ही cation हो तो हम total number of valence electrons में से कितने electrons lose हुए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हम उन्हें ही एटम्स के अराउंड अरेंज करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच we will do in the next part. Thank you.